نئے عہد نامے میں سے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت سے. پلیز سب تشریف رکھے بیٹھ جائیں. اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے کہا آؤ پار چلیں. اسی دن جب شام ہوئی تو یسوع نے کیا کہا؟ آؤ پار چلیں. ایک دوسرے سے کہیں آؤ پار چلیں. ریئلی لٹرلی کہیں ذرا, کیونکہ یہ زمین کا جو خیمہ ہے یہ گرایا جائے گا, سب کچھ ڈسٹروائے ہوگا. اور ابھی تو سر کل پھر جا رہے ہیں, میں سوال نہیں کر سکتا. تو اسی کی دیتا ہے تاڑا دن خدا کا معاملہ ہے, کیونکہ سنڈے کو میں ریکویسٹ کر کے گیا تھا اور صبح خدا کے ممسو دوبارہ اس علاقے میں جا رہے ہیں. تو زمین کے خیمے بھی گرائے جائیں گے, یہ بدن بھی ختم ہو جائے گا, لیکن پار کس نے لے کر جانا ہے؟ بولے یسوع نے, بولے یسوع نے. اب ایک دوسرے سے کہیں یسوع کہتا ہے وہ پار چلیں. اس لفظ کو نہ بھولیے گا. اسی بیس پہ آ کے ہم نے کلوز کرنا ہے, ٹائم شارٹ ہے اس لیے تھوڑا سپیڈ سے چلیں گے. اور لکھا ہے اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے کہا آؤ پار چلیں, اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر جس حال میں تھا کشتی پر لے چلے, اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی, اور وہ خود پیچھے گدی کی طرف سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد, کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ بائبل پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ پانی کا طوفان آیا تو اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی. کتنی تھی؟ اور کشتیاں بھی تھی. اور میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ گراسینیوں کا علاقہ تھا, یہ جسے کراس کر کے جانا چاہ رہے تھے. اور یہ جو جھیل تھی یہ گراسینیوں کی تھی, اور یہ جھیل کم سے کم 13 میل لمبی اور 7 میل چوڑی اور پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی. اور شام کے ٹائم اسے کراس کرنا بہت مشکل تھا, لیکن جب یہ طوفان آیا تو پتہ ہے کتنی لہریں تھیں؟ تقریباً 20 فٹ اونچی لہریں تھیں. کتنی؟ اگر 10 فٹ کی یہ چھت ہے اسے ڈبل کر لیں. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں شاگردوں نے یسوع کو ہلا کر جگا کر کہا اے استاد, کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ سم ٹائم ہم بھی ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں, ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں وہ خدا نے چھوڑ دیا. کس نے چھوڑ دیا؟ ایک بات آپ کو میں چیلنج سے کہنا چاہتا ہوں, جو برہ کے لہو سے خریدا جاتا ہے اسے خدا کبھی نہیں چھوڑتا بلکہ چن لیتا. ہم چنے ہوئے ہیں, کہیں آمین. ہم شاہی خانہ کا فرقہ ہے, بولے آمین. ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں, کہیں آمین. ہم لیپالی کے, بولے آمین. ہم برہ کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے انہوں نے یسوع کو جگا کر کہا اے استاد, کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اور یسوع پیچھے گدی پر, گدی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ریسٹ کے لیے بنائی جاتی تھی, سب سے لاسٹ میں ہوتی تھی. لیکن مجھے بتائیے گا کیا یسوع مسیح واقعی سو رہے تھے کشتی کے اندر؟ ہاں جی بولے بولے ذرا جی بیٹا, یسوع واقعی سو رہے تھے. بائبل میں لکھا ہوا, میں نہیں کہہ رہا, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع گدی پر سو رہے تھے, انہوں نے سوئے ہوئے جگایا. یسوع نہیں سو رہے تھے, نہیں سو رہے تھے. بظاہر لکھا ضرور ہے فزکس کے لحاظ سے, انسان کی صحت کے لحاظ سے وہ ریسٹ میں تھے, لیکن وہ سو نہیں رہے تھے. میرا یسوع سوتا نہیں ہے بلکہ میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے, بولے آمین. انہیں لگا وہ جو ہر وقت یسوع کے ساتھ رہتے تھے حالات کو دیکھ کر گھبرا گئے. وہ 20 فٹ اونچی لہریں, جب وہ پانی کشتی میں آ رہا تھا تو وہ گھبرا رہے تھے. وہ یہ بھول گئے تھے طوفان جتنے مرضی کیوں نہ ہو, اگر یسوع کشتی میں ہے تو کشتی ڈوب نہیں سکتی, بولے آمین. کہیں میری زندگی کشتی میں یسوع ہے, کہیں آج میری مسز میرے ساتھ آئی ہیں, ہمارے خاندان میں بڑے بڑے طوفان آئے, بڑے بڑے ایسے حالات آئے, لیکن ہم نے ہمیشہ یسوع کو پہلا درجہ دیا. اور یاد رکھیے گا آپ کی بیماری بڑی نہیں ہو سکتی. آج یہ شفائیہ میٹنگ ہے, آپ کی کمزوری بڑی نہیں ہو سکتی, آپ کا شوگر بڑا نہیں ہو سکتا, آپ کا جادوگر بھائی صاحب نے کیا ہے, جس نے آپ پہ جادو کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ بڑا نہیں ہو سکتا بلکہ سب سے بڑا میرا خدا ہے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. آئے اس خدا کے لیے آپ تالیاں ضرور بجا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سارے اس ٹائم قبر کے نیچے ہیں, مٹیوں کے نیچے ہیں, پانی کے نیچے ہیں,
लेकिन उसकी कब्र पे लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहे के मुताबिक जी उठा। बाइबल में लिखा है उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा थम जा, बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। किसने उठकर बोले? ए मेरे यीशु ने। किसको? हवा को डांटा और पानी से कहा थम जा, साकत हो जा, ठहर जा, बस बड़ा अमन हो गया। क्या हो गया? अमन हो गया। एक बात याद रखिएगा, अभी हम गीत भी गा रहे थे कि आपकी जंग खुदा लड़ता है। बोले आमीन। मेरा खुदा, मेरा जो चौपान है मेरे आगे आगे चलता है। बोले आमीन। इसलिए आपने जंग नहीं लड़ी, आप ना लड़ सकते हैं, लेकिन जो लड़ चुका है वो फतहमंद हो चुका है। बोले आमीन। और यहाँ पे लिखा है उसने उठकर हवा और पानी को, कैसी वैसे बात है ये पानी, चलो सिस्टर जी लाई, खांसी आ गई, थैंक यू। ये मेरे हाथ में क्या है? पादरी को पता नहीं, अच्छे गिलास से पानी है जी है ना। यस, इसके कान बता सकते हैं किधर है? आपको नजर आ रहा है इसके कान किधर है? लिटरली बोल रहे हैं व्हाट पॉसिबल। बाइबल में लिखा हुआ है उसने हवा और पानी को डांटा, उन्होंने सुना, उन्होंने यीशु का हुक्म सुना। ये हवा चल रही है, इसके कान कहीं नजर आ रहे? पंखे नजर के पार नजर आ रहे? हाँ जी है नहीं? बोलो तो सही, ये कैसे हो सकता? बाइबल में लिखा, मैं नहीं कहता, लेट्स रीड इन द बाइबल। उसने हवा और पानी को डांटा। हवा और पानी ने यीशु का कलाम सुना, यीशु की आवाज सुनी। कितने कान ने खींचो, माँ प्यो ने बड़े खींचे, बड़ी मार खाती है ना माँ प्यो को, ऐसी कोट हम ही ना कह कुड़िए है गल साथ। हाँ जी, कान है, कितने कान है? कितने कान है? एक दूसरे के, तेरे पास दो कान है, कहीं जरा, कहीं जरा, तेरे पास दो कान है। हवा और पानी अगर यीशु का कहा मान सकते हैं तो तुम इन दो कानों से सुनकर खुदा का कहना क्यों नहीं मान सकता? क्यों नहीं मान सकती? किधर है तू जब कलाम हो रहा होता है? तेरा ब्रेन किधर पहुंचा होता है? हवा और पानी ने यीशु का हुक्म माना, मैं और आप उसका हुक्म क्यों नहीं मानते? तो बाइबल लिखा हो उसने उठकर हवा और पानी को डांटा, पानी से कहा साकत हो जा, हवा थम गई, बड़ा अमन हो गया। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, फिर उसने कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। अभी बाइबल कॉलेज एफएससी में पढ़ा के आ रहा था, ईमान पे बात हो रही थी, इसी बेस पे एक वर्स आई, इसी वर्स को भी सीखा हमने। उसने उठकर हवा और पानी को डांटा, फिर अपने शागिर्दों को भी डांटा कि तुम अब तक ईमान क्यों नहीं रखते। आज कितने जब बीमारियों के लिए दुआ करवाने आए, ईमान से बताए, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, ठीक है, लेकिन पास्टर साहब के पास कुछ नहीं है, लेकिन इस कलाम में सब कुछ। आपने जब पास्टर साहब दुआ करेंगे, ईमान आप, वो आपसे भी कहते हैं मेरा ईमान है, मैं देखता हूँ कि आप ईमान यीशु पे रखते हैं, उसके बेटे पे रखते हैं, खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दस। बोले आमीन। शक तो कोई नहीं। जब आप कलाम पे ईमान रखेंगे तो लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने अपने शागिर्दों से कहा तुम अब तक ईमान क्यों नहीं रखते? आज आपका फेथ काम है, किस पे भरोसा करते हैं? किसी इंसान पे, किसी के हाथ रखने पे? नो विल्सन, आदम दुआ करेंगे शिफा मिलेगी, आमीन। वो भी ईमान से खुदा से मांगते हैं, और आपने भी ईमान से किससे मांगना है? खुदा से मांगना है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब सारे सिलसिले हो रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों को डांटा, और लिखा है वो झील के पार गरसीनियों के इलाके में पहुंचे। झील के पार किस इलाके में पहुंचे? और एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी उठकर कब्रों से निकल कर आया। वो कब्रों में रहा करता था, अब तक जो उसे जंजीरों से नहीं बांध सका था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़कर और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे काबू में नहीं रख सकता था। ये उस शख्स के बारे में है, कोई उसे काबू में नहीं रख सकता था, और वो हमेशा दिन रात कब्रों में, पहाड़ों में चलाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता। पास्टर को बड़े केस आते हैं अमेरिका में, दो दिन में भी आ चुका हूँ, देख चुका हूँ कि लोग अपने आप को मार रहे होते हैं, वो लोग नहीं मार रहे होते, वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो उस बंदे को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और इस शख्स में कितनी बदुआएं थी,
तकरीबन 2000 का एक लश्कर था। ये मैं नहीं कहता, बाइबल प्रूफ करती है। अभी सीखते हैं कलाम में से। और यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया। उसे अब तक कोई काबू में नहीं रख सकता था, लेकिन जब यीशु सामने आया तो बदरूहों समेत दौड़ता हुआ उस 2000 बदरूहों ने, और एक वो खुद था, 2001 शख्सियत जो थी वो किसको सिजदा कर रही थी? बोले मेरे यीशु को। लिखा है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, कहा वो आसमानियों का, कहा वो जमीनियों का, या पानी के नीचे, हर एक जुबान इकरार करेगी कि मसीह खुदावंद है। बोले आमीन। और बाइबल में लिखा हुआ है, और यीशु को देखकर दूर दौड़ा और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, यीशु खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या कहा? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अज़ाब में ना डाल, क्योंकि उसने कहा था क्या नापाक रूह इस आदमी में से निकल जा। अब वो बदरूहें क्या कह रही हैं? खुदा ताला के बेटे। बदरूहों को पता है यीशु खुदा का बेटा है, और जो जुबान इकरार करती है मसीह खुदावंद है वो निजात पाती है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल में लिखा। अब बदरूहों को पता था वो खुदा ताला का बेटा। हमें भी पता है यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन ईमान में डामाडोल हो जाते। जब तूफान आते हैं तो फिर डामाडोल हो जाते हैं, भाई ले डूबेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, डिपेंड ऑन गॉड। जब यीशु कश्ती में है तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। बोले आमीन। यीशु का आपके खानदान के अंदर कश्ती में होना बड़ा लाज़मी। बी केयरफुल। आज यीशु मसीह है कहाँ पर? दरवाजे के बाहर या अंदर? ये मैंने और आपने इसको रखा हुआ है, रियलिटी। और लिखा है, फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत से हैं। क्यों? इसलिए यीशु एक्चुअली अपने शिगिर्दों को बताना चाह रहा था कि उनकी तादाद कितनी है। लेकिन आजकल तो होता है कि जब दोनों निकालते हैं डायरी रखी होती है, कितों आया है, कितने भेजे हैं, अच्छा भेजने वाले का ना की है। और आपको सच बताऊं, बदरूहें हमेशा झूठ बोलती हैं। हो सकता फुफी लैके आई होवे, ताई दवाली लैके आई होवे, बदरू ने सीधा ही कहना है यदि ताई ने करवाया है, यदि ताई ने भेजे। बड़े केस डील करते हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा बदरू वाला केस नहीं है, सॉरी। खुदा ने हर बंदे को अपने अपनी बरकत दिया और खुदा के मंसूबे का शुक्र करते हैं। तो वो क्या करती हैं? बदरूहें हमेशा झूठ बोलती हैं। अब यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने क्या कहा? क्या कहा? क्योंकि हम बहुत से हैं। और लिखा है क्या लोग आज आप तैयार हैं अपनी बरकत लेने के लिए? बस ये क्लोज हो रहा है। ईमानदारी से बताइएगा, ये हाथ मैं नहीं देख रहा, मैं भी अपना हाथ खुदा को दिखा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा आगे से, देखिए क्या लिखा कलाम। उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत से हैं। फिर उसने उससे बहुत मिन्नत की, हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। किसने मिन्नत की? बोलो तो सही, क्यों डांटते पे हो? हाँ जी, किसने मिन्नत की? वो जो लश्कर था, तकरीबन 2000 बदरूहें जो एक शख्स में थी, उन बदरूहों ने यीशु की मिन्नत की, हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ों पर सूरों का एक खोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत की और कहा हम पे इन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो। बस उसने उनको इजाजत दी, हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। भूलिएगा ना, ये मिन्नत कौन कर रही है? ये लश्कर जो तकरीबन 2000 का था। और मैं नहीं कहता, बाइबल प्रूफ करती है। इजाजत दी और पाक नापाक रूहें उसमें से निकलकर सूर में दाखिल हो गई। और वो गोल जो के 2000 का था, जो सूरों का गोल कितना था? 2000 का था। और कड़कड़ाने झटपड़ कर झील में जा पड़ा और झील में जाकर डूब मरा। और सूरा ने भी बदरूआं नु अपने अंदर नहीं रहन दिता। ऐसी अजायब जोई दी बदरू नु अंदर रखे है, गुस्से दी बदरू नु अंदर रखे है, ना माफ करने की बदरू को हमने अपने अंदर रखा हुआ है। हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल में लिखा है माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। अब सूरों ने किसकी मिन्नत की? गलती होगी। भाई बदरूआ ने कितनी मिन्नत की थी? हमें इस इलाके से ना भेज। और यीशु ने फिर बदरूओं की मिन्नत मानी के नहीं मानी? यीशु ने बदरूओं की मिन्नत मानी के नहीं मानी? और जब बदरूओं की
के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु एक के लिए सारी भीड़ छोड़ के आ गया था, कांग्रीगेशन छोड़ के आ गया था, वो खुली हुई भेड़ को लेने आया था, और वो बदरूहें भी जानती थी ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। अगर यीशु बदरूहों की मिन्नत मान सकता है तो फिर आज के आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, आपकी परेशानियों को दूर नहीं कर सकता, आपकी फिक्रों को दूर नहीं कर सकता। और read that in the Bible, जैसे ही उस शख्स से बदरूहें निकली, यीशु ने कैसे कपड़े बनाओ, नंगा था, इज अ रियलिटी। वहां से गुजरता कोई नहीं था, सुबह के टाइम भी कोई नहीं गुजरता था, और बदरूहों ने यीशु की मिन्नत की, हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। आज भी शाम को उसी स्पेसिफिक एरिया पे शाम के टाइम वैसी ही 20 फुट ऊंची लहरें उठती हैं। वो बदरूहें आज भी उसी इलाके में रहती हैं, और वहां पे जो मूवमेंट करने वाले हैं, शिपमेंट्स वाले हैं जो जाते हैं, वो शाम के टाइम उस एरिया को क्रॉस नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब यीशु कश्ती में होगा तो तूफान थम जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यीशु के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी की कश्ती में है। और जब ये शख्स ठीक हो गया तो लिखा है जो जिनके सूर मार गए सी ना, वो दौड़ के गए, उन्होंने सारे इलाके को लेकर आ गए, और सारा इलाका, और यीशु दी मिन्नत बदरूहा कर दी भई असी सानू इलाके चो बाहर ना जान दे, ते लोकी यीशु दी मिन्नत कर ला पे, हमारी सरहदों से बाहर चला जा। आज भी मैं और आप यीशु को अपने घर से बाहर भेजते हैं। मेरा और आपका कैरेक्टर, काम, रवैये और बातें यीशु को बाहर भेज देती है। और जब ठीक हो गया तो उसको चंगे पर परेशान हो गए, हो गया, हो ही नहीं सकता, उससे सही होकर बैठा, कपड़े कुपड़े पा के, बंदे का पुत्र जी कहते बन के बैठा है, तो फिर भी उसको डरते पे वो यीशु के पीछे चल पड़ा। इसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां जहां तू जाएगा। मैं शॉर्ट इसलिए किया, वर्ष नहीं पढ़ रहा, तो कभी खुदा खादम ने अपनी दुआ भी करनी है। चला कि नहीं चला? यीशु ने क्या कहा, नहीं तू वापस अपने खानदान में जा, और जो काम खुदा ने किए हैं वो लोगों को उसकी क्या दे, गवाही दे, खबर दे। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जो काम खुदा आपके लिए करता है, खुदा